everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. It's Shrikal, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with today's session जहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा one shot revision of a chapter of people as a resource. So this is going to be our final revision session. So let's get started without any further ado. Also, let me quickly introduce myself. Hi everyone, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe. I have been associated with the sector of education for more than 9 years now, wherein I have taught both online and offline to the students of CBSE and ICSE board. I come from a background of humanities and hence specialize in English and social science. Now talking about the chapter and the session. So बच्चे, because it's a one shot session, हम जो है पूरा chapter करने वाले हैं. We'll be talking about human capital formation. What do you mean by human capital? What does a quality of population mean? How is it determined? What are the factors that affect the quality of population? And of course, we'll also be talking about unemployment, the various types of unemployment, what leads to unemployment, how can it be resolved, so on and so forth. So let's get started. But before we do, we'll also take a quick moment and I want to show you a very powerful tool that we have designed for you, which is the Imbibe Lens app. So we'll have a quick lens moment of the day. So all you need to do is just make sure that you have the app on your phone. So I'm just going to quickly open the app. It will ask for the access to camera. तो मैंने कैमरा को access दे दिया है. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे as you can see I've taken my phone and I'm going to just quickly scan what is there on my screen. The moment I scan it, it automatically highlights all the important words. as you can see ये सारे important words जो हैं यहाँ पे highlight हो चुके हैं और ये keywords हैं और वो यहाँ पे pop कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आप screen पे भी देख पा रहे हो यहाँ पे. Let me quickly hide myself. So when you basically scan the text, you'll be able to see all the important words popping up over here and you just have to highlight, you'll find those words highlighted over there. You just have to pick the one that you want to learn about. For example, let's say यहाँ पे मुझे दिख रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहती हूँ. मैंने उस पर क्लिक किया है. जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया है, सारे इंपॉर्टेंट जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं विथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड, वो यहाँ पे अपने आप आ चुके हैं. ठीक है, और अब इनमें से जिनको भी मैं पढ़ना चाहती हूँ वो मैं पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ, रिव्यू कर सकती हूँ. नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज दैट इट मेक्स द होल प्रोसेस very easy of finding what you want to learn, what you want to learn about, because normally a lot of time that we spend goes into doing the research and figuring out कि कहाँ से पढ़ना है, हमारा रिसोर्स क्या होगा, so on and so forth. वो प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉल्व हो जाती है क्योंकि हमारी लर्निंग बहुत एक्सेसिबल, बहुत ईजी बन जाती है और अब हमारा टाइम जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा कि हम ढूंढ रहे. जब हमारे पास वक्त हम कर सकते हैं, बट हमेशा चॉइस जो है हमारी होनी चाहिए. इफ यू फील दैट नो, आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, आई जस्ट वांट टू गेट डन विद इट, आई वांट टू फाइंड समथिंग ऑलरेडी एंड स्टार्ट लर्निंग, दिस इज व्हाट यू वांट टू यूज, राइट? सो विल स्टार्ट विद 3 क्विक क्वेश्चंस एंड आई एम गोना हाइड माय सेल्फ विद दैट. तो ये 3 सवाल, क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है और ये वन शॉट रिविजन है, इन 3 सवालों के साथ हम हमारे सेशन को शुरू करेंगे. सबसे पहला सवाल कह रहा है दैट अनएम्प्लॉयमेंट टर्न्स पीपल हु आर एन एसेट टू द इकोनॉमी इनटू अ डैश कैपिटल, लाइबिलिटी, वेल्दी एंड रिच. इसका जवाब देना है आपको. Unemployment turns people who are an asset to the economy into what? तो बच्चे, जब भी कोई अनएम्प्लॉयड होता है, whenever somebody is unemployed, चाहे वो कितना ही रिसोर्सफुल इंसान क्यों ना हो, वो कैपिटलाइज नहीं हो पाता है, वो कैपिटल में टर्न नहीं कर पाता है, यानी कि वो एसेट नहीं बन पाता है. जब एसेट जनरेशन नहीं होती है तो वो क्या बन जाती है, बर्डन बन जाती है. तो कैपिटल हट जा रहा है, वेल्दी हट जा रहा है, रिच हट जा रहा है, हमारे पास क्या बच जा रहा है,
हमारे पास लाइबिलिटी बच जा रही है, हमारे पास बर्डन बच जा रहा है। तो ऐसा इंसान जो है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ऐसा इंसान हमारे लिए बन जाएगा लाइबिलिटी, जो अदरवाइज कुड हैव टर्न्ड आउट टू बी एन एसेट। सो लाइबिलिटी वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी डू, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर करती है उस कंडीशन को जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, लेकिन वो चाहते नहीं है। द चॉइस दैट दे आर मेकिंग इज नॉट टू वर्क, but the people who are making the choice to work or they're seeking for work and still are not able to find their expectations being met, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड द रिसोर्सेज हैपेंस। पीपल हु आर एन एसेट टू द इकोनॉमी दे टर्न इनटू अ लायबिलिटी, ओके, विच इज लाइक अ बर्डन, क्योंकि वो अपने आप को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, अपने नॉलेज को मनी अर्न नहीं कर पा रहे, मनी जनरेट नहीं कर पा रहे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी के बारे में ये सवाल है। लिटरेसी अमंग मेल्स is nearly 16.1% higher than among the females, and it is about 14.2% higher in the urban areas compared to the rural areas. As per 2011 census, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. What are the potential consequences of the observed gender and urban-rural disparities in literacy rates as per the 2011 census data? Higher male literacy may lead to increased labor force participation and wage gaps favoring males. Urban-rural literacy differences will likely result in higher agricultural productivity in urban areas. Kerala's high literacy rate is indicative of strong industrial development, or Bihar's low literacy rate suggests a more diversified and robust economy. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है हमारा यहाँ पे। ये आपके ऑप्शंस हैं। Just review the first two options first, then I'll give you few seconds to move on to the next two options. Okay, let's review the other two options also. Okay, you guys. So higher male literacy may lead to increased labor force participation and wage gaps between the two genders. It will naturally favor the males more rather than the females, and that's what something that we have even observed happening, right? So the observed gender and urban rural disparities in literacy rates as per the 2011 census data. It has a range of potential consequences, and one of the critical consequences is that higher male literacy can lead to increased labor force participation and wage gaps between which can favor males. When there's a significant difference in literacy rates between males and females, it translates into a substantial gender gap into the labor force. The gender disparity in literacy can contribute to wage gaps where men earn more than women for a similar work is what we have observed. So this gender biasness has always existed. आप आगे चल करके 10th स्टैंडर्ड में जेंडर रिलीजन पॉलिटिक्स वाला चैप्टर जब पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पे यू विल एक्चुअली इन फैक्ट सी दैट इन जनरल द जेंडर बायसेस एग्जिस्ट अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज ऑफ us being into a part of a patriarchal society. Now on top of that, जब literacy rate में उसका reflection आता है, तो अगर लोग नहीं भी चाहते हैं तो ना चाहते हुए भी उसका रिजल्ट और उसकी implication employment पे पड़ जाती है और उसका असर जो है वो दिखने लग जाता है, ठीक है। Which of the following is a sign of a high quality of life?
IMR, which rises, the infant mortality rate, death rate increase, birth rate increase और increase in life expectancy. इनमें से कौन सी चीज एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ की इंडिकेशन है? Okay. So high quality of life cannot have the infant mortality rate risen up because it's not a good health indicator. It shows that there's a lack in the healthcare system. Death rate increase is again death rate जो है वो जितना कम होता है population उतनी healthy साबित होती है. Birth rate increase and increase in life expectancy. So sign of a high quality of life is not necessarily birth rate increase. Birth ho jana is not enough because it can lead to problems like also infant mortality rate. सिर्फ birth इस चीज का इंडिकेटर नहीं हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है. हो सकता है बर्थ रेट के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, लेकिन अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है तो ये क्लियर इंडिकेटर है दैट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इज डेफिनेटली बेटर. दे हैव एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, they are staying in a good environment, and they are having nutritious food, etc. So an increase in life expectancy, it simply indicates excellent health and a good quality of life of a nation. Life expectancy is an essential factor in countries' human development. Indeed, the Human Development Index considers life expectancy to be one of its key metrics. In general, life expectancy may be described as an average age at which a country's citizens are anticipated to live. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या एग्जैक्टली exactly? कोई भी इंसान कितने लंबे समय तक जीवित रहता है उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. जैसे कहीं पे वो एवरेज लाइफ स्पैन किसी की 35 ईयर्स हो सकती है, विच इज वेरी लेस बिकॉज 35 इज अ वेरी यंग एज. अगर लोग इससे ज्यादा नहीं जी पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, मतलब यहाँ पे लोग हेल्दी नहीं है या उनके साथ कुछ चैलेंजेस है, हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रॉब्लम है. वेयर एज इफ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ प्लेस ऑफ अ पर्सन इज above 70 years, above 65 years, which means they are actually kind of turning old. They have lived through all their life. They have lived the prime years of their life, and then they are actually, passing away. Then they face the death. So in these cases, we are able to understand that it's actually pretty good for the population over there, and वहाँ पे जो भी problems है as such नहीं है related to healthcare, and they have a proper provision, right? So let's get started. A long time ago, we understand humans started using stones as a weapon, and in his day life. So there was a point where we did not have access to fire, we did not have access to a lot of tools and metals. All of that was not discovered. But with this, the unnoticed stones have become an important resource for humans till date. Is this the model of resources? Let's watch this session to know more about it. Resources की definition, the very definition is what we are going to dwell into. And how do we fit in there as a gift of nature? Normally gift of nature की बात की जाए तो पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, सॉइल, ऐसे कई सारी चीजों के बारे में सोचते हो. बट ह्यूमंस उसमें क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहले इस टाइटल को हम थोड़ा सा डेसिफर करेंगे कि पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब है. रिसोर्स क्या होता है, यहां से शुरुआत करते हैं. द वेरी टर्म रिसोर्स, व्हाट इज मेंट बाय द वेरी टर्म रिसोर्स. ठीक है, ये जो हम यहाँ पे शब्द देख रहे हैं,
is the very term. What does the very term of resource mean? Think about it. Take few seconds. एंड अगर मैं आपसे कभी पूछ देती हूँ कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपके हिसाब से एक रिसोर्स क्या होता है? एंड अगेन, class 10, the very first chapter of geography will be resources and development, and we will be talking about what you mean by resources over there. But यहाँ पे अगर मैं पूछ रही हूँ कि people as a resource की हम बात कर रहे हैं कि humans कैसे resource बनते हैं, तो उससे पहले जरूरी है कि we have a clear understanding of the factor that what do you exactly mean by the term resource. So just take few seconds. If you're clear about this, this chapter is going to turn out to be very, very easy for you. सो रिसोर्स कुड बी एनीथिंग, ठीक है? रिसोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है. रिसोर्स नॉर्मली हम रेफर करते हैं किसी भी नेचर के गिफ्ट को या फिर मैन मेड थिंग को जो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है अपने काम को आसान करने के लिए. एक रिसोर्स को एक रिसोर्स की तरह क्वालिफाई करने के लिए मेजरली 3 कैटेगरीज को फुलफिल करना होता है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, सोशली कल्चरली जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए. कि ऐसा ना हो कि आपने पैसे जो है उसमें 100 रुपए लगाए, उसमें खर्च कर दिए उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, और उससे फायदा आपको मात्र 50 रुपए का हो रहा है, तो वो घाटे का सौदा है, तो वो रिसोर्स नहीं होगा, वो बर्बादी होगी. वैसे ही ह्यूमंस जो है नॉर्मली, क्योंकि हम नेचर की गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वी थिंक अबाउट सोलर एनर्जी, वी थिंक अबाउट द सॉइल रिसोर्स, वी थिंक अबाउट 10,000 थिंग्स, राइट? बट व्हाट वी आर actually referring to over here is that when we were talking about resource, humans become a primary part of it. क्योंकि अगर आप देखो तो वो इंसान ही है जो इन रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है. जहाँ पे इन्वेंशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे डिस्कवरी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे डिस्कवर कर रहा है, वहाँ पे अपनी इनोवेशंस लगा रहा है, अपनी नॉलेज लगा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहा है, अपने पैसे लगा रहा है, नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. कोल तो प्रेजेंट है नेचर में, लेकिन क्या कोल वैसे ही इस्तेमाल हो सकता था अगर ह्यूमंस उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते, ह्यूमंस उसको फिगर आउट नहीं करते, उसको रिफाइन नहीं करते, पेट्रोलियम को रिफाइन नहीं करते? नहीं, ये सारी चीजें बर्बाद हो जाती है और हमारे लिए किसी भी तरीके से काम नहीं आती अगर ह्यूमंस वहां पे अपना रोल प्ले नहीं करते. तो अल्टीमेटली ह्यूमन ना एक प्राइमरी रिसोर्स बन जाता है, और हम भी तो आखिर नेचर से ही आए, तो नेचर का ही गिफ्ट हम खुद भी हैं. हम ही नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इसीलिए हम प्राइमरी रिसोर्स बन जाते हैं. तो जब हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो पीपल एज अ रिसोर्स थोड़ा एक एडवांस लेवल पे हम समझाना चाह रहे हैं कि जब जनरेशन ऑफ वेल्थ होता है, जब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, जब जनरेशन ऑफ इकोनॉमी होती है, तो ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सारा कुछ ह्यूमन से आ रहा है. It is the human who's trying to find out, who's innovating, who's finding out the various elements present in the nature, figuring out the various elements in the nature, extracting it using their knowledge, using their skill, and doing development, doing growth, doing progress. So people are a resource. जब हम पैदा होते हैं तो हम हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ, फिजिकल एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, और इन चीज़ों को यूज़ करके हम सोसाइटी में कई सारे काम कर सकते हैं. इसीलिए हमारा जो मतलब किसी भी देश का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो उनके वर्किंग पीपल के क्लास से डिफाइन करता है कि उस देश की डेवलपमेंट किस तरफ जाएगी. The better the education and the health of the population is, the better would be their growth. आप किसी भी डेवलप्ड नेशन का जब आप एग्जाम्पल उठा करके देखते हो, आप क्या देखोगे? यूएस में क्या देखोगे? लिटरेसी रेट हायर देखोगे, लोगों की कन्वर्जन इनटू अ हेल्थियर पीपल, एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड पीपल, नॉलेजेबल पीपल ज्यादा हायर देखोगे. वहीं पे अगर आप एक डेवलपिंग नेशन का एग्जाम्पल देखोगे तो लिटरेसी रेट, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ थोड़ा लिमिटेड दिखेगा, एक्सेसिबिलिटी तो दीज थिंग्स थोड़ा लिमिटेड दिखेगा. तो जब हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली किसी भी नेशन के वर्किंग पॉपुलेशन को रेफर कर रहे हैं.
अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल बहुत सिंपल सा पूछ सकती हूँ कि भैया बताओ, अगर किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन, वी हैव अ वेरी सूटेबल क्वेश्चन राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस टू फिगर आउट एंड आंसर, कि किसी भी देश की पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो पॉपुलेशन उस देश के लिए एक ब्लेसिंग है या एक बून, मतलब is it good for them, is it like an asset for them, is it like a blessing for them, or is it like a curse for them, या उनके लिए एक लाइबिलिटी है, एक बर्डन है? इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, उतने ज्यादा लोग वेल्थ जनरेट करेंगे, उतने ज्यादा प्रोग्रेस होगी, उतना अच्छा होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम अगर जो है हम अच्छा जनरेट भी कर दे रहे हैं वेल्थ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो वो बर्डन ही तो डालेगी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस होंगे, स्ट्रेस पड़ेगा नेशन पे, इतने सारे लोगों को घर दिलाना, खाना दिलाना, उनको सर्वाइव करवाना, अपॉर्चुनिटी देना, एम्प्लॉयमेंट देना। ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट सही है, बट ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये लोग कैसे टर्न आउट कर रहे हैं। अगर ये सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, अच्छे से वेल्थ जनरेट करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में, तो ये एसेट बन जाते हैं और वहां पे पॉपुलेशन एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आती है फॉर द नेशन। वेयर एज ऑन द अदर ग्राउंड, ऑन द अदर साइड, इट गोज दी अदर वे राउंड। ठीक है, दूसरे ही तरफ अगर पॉपुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है, बहुत वेल एजुकेटेड नहीं है, बहुत एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो बर्डन बन जाती है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि सब्सिडीज दो, खाना पहुंचाओ, लोगों का ध्यान रखो, उनकी डेवलपमेंट कराओ, और ऐसा देश के लिए डेवलप हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब हम पीपल को एज अ रिसोर्स डिफाइन कर रहे हैं तो हम वर्किंग पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन हमें पता है क्या होता है, हालांकि हम आगे चल के उसको वापस डिस्कस भी करेंगे, बट जो लोग वो एनर्जी रखते हैं और उस एज गैप को बिलोंग करते हैं, उस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो वेल्थ जनरेट कर सकती है, इकोनॉमी जनरेट कर सकती है, प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकती है, वो लोग अगर एक्चुअली अच्छे से हेल्दी होते हैं, एडुकेटेड होते हैं और जनरेट करते हैं इकोनॉमी, तो वो देश डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो वर्किंग क्लास जो किसी भी एग्जिस्टिंग देश की होती है, उसकी स्किल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितना डेवलपमेंट कर पा रही है, उसे हम पीपल एज अ रिसोर्स रेफर करते हैं, रिसोर्स रेफर करते हैं। अब एक मेजर कंफ्यूजन हमें आती है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है बच्चे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ एज अ ह्यूमन हम कुछ सर्टेन पोटेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। हमारे पास दिमाग होता है, हमारे पास एनर्जी होती है, हमारे पास स्ट्रेंथ होता है, तो हम अलग अलग तरीके के काम करने की स्ट्रेंथ रखते हैं अपने अंदर। हम अच्छे जॉब्स करने की स्ट्रेंथ रखते हैं अपने अंदर, हम अच्छे आइडियाज लाने की, एक्सपेरिमेंट्स करने की, प्रोडक्टिविटी करने की जो है पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर। साथ ही साथ फिजिकल वर्क, मैनुअल वर्क करने की स्ट्रेंथ रखते हैं अपने अंदर, एंड दैट इज द रिसोर्स, दैट इज द पोटेंशियल दैट वी आर बोर्न विथ। लेकिन इस पोटेंशियल को और उभारा जा सकता है, इस पोटेंशियल को और निखारा जा सकता है। कैसे आप इस चीज को और इंक्रीज करोगे? एक इंसान को पढ़ने भेज दो एक बहुत फर्स्ट क्लासेस स्कूल में, नॉट फर्स्ट क्लासेस स्कूल में, बट गिव देम द एक्सेस टू गुड एजुकेशन, जहाँ पे एनलाइटमेंट हो रही है, उनकी लर्निंग हो रही है। जब वो लर्न करते हैं तो उनकी अवेयरनेस, एक्सपोजर बहुत वाइडन अप हो जाती है, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं, और उसके बाद जो आइडियाज उनके दिमाग में आती है, जो प्रोडक्टिविटी वो कर सकते हैं, माशाल्लाह उसका कोई हिसाब नहीं है, राइट। एट द सेम टाइम अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो फिजिकल, मैनुअल लेबर, जिस अमाउंट का काम वो कर सकता है, अगेन उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम कुछ बेसिक रिसोर्सेज के साथ पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मैंने क्या किया, ये जो पोटेंशियल था एक ह्यूमन के अंदर, उसको और ब्रश अप किया, उसको और निखार दिया, उसको और बढ़ाया, दिमाग तेज कराया, उसको और स्ट्रांग बनाया, हेल्दी बनाया, ट्रेनिंग कराई, और ज्यादा स्ट्रांग किया, स्ट्रेंथनिंग किया। अब वो और फिजिकल मैनुअल लेबर भी कर सकता है। अब इसकी वजह से अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल को जो उसने उभारा है, निखारा है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ट्रेन किया है, अब जो वो प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, विल जनरेट अ लॉट ऑफ मनी, विल एड ऑन टू अ ग्रेट एज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जनरेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी फॉर द नेशन, सो टू से। तो इसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं।
हर एक इंसान वैसे ही रिसोर्स होता है, लेकिन वो किस क्वालिटी का रिसोर्स होगा वो उसके एक्सपोजर पे, उसकी लर्निंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। वो जितना एडुकेटेड, जितना हेल्दी होता जाएगा, उतना बेटर वो रिसोर्स बनता जाएगा। सो लाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमंस भी एक रिसोर्स होते हैं, और पॉपुलेशन कभी भी या तो एक एसेट या एक बर्डन की तरह एक्ट कर सकती है। जब आप उस रिसोर्स को निखार देते हो, बहुत ज्यादा उभार देते हो, बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हो, बहुत ज्यादा ब्रशअप कर देते हो, ग्रूम कर देते हो, तो इस रिसोर्स में पोटेंशियल की जो कमी थी कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है। यानी जो पोटेंशियल लोअर लेवल पे था वो बहुत हायर लेवल पे चला जाता है। नाउ द ह्यूमन कैन प्रोड्यूस a lot physically, mentally, economically, socially, and that is the whole process of human capital formation. So human capital formation is जहाँ पे resource हमारा best utilize हो रहा है humans का, और generate कर रहा है wealth as much as possible. अब ये इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन जनरल होता है इनपुट। कभी आप कोई फैक्ट्री भी चला रहे हो, कोई प्रोडक्शन भी कर रहे हो, तो आपको कुछ इनपुट लगाना होगा, ठीक है? आपको रॉ मटेरियल्स देने होंगे, आपको लेबर देना होगा, आपको कुछ लैंड रिसोर्सेज देने होंगे। स्टूडियो विलेज पालमपुर में हमने समझा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें आपको इनपुट देनी होती है। आपको नॉलेज, स्किल, लैंड, लेबर, ये सब लगाना होता है। फिर आपका रिजल्ट निकल के आता है, फिर आपका आउटपुट निकल के आता है, और उस आउटपुट से आपका रिजल्ट डिटरमाइन होता है। द बेटर द इनपुट, द बेटर द आउटपुट, एंड द बेटर द रिजल्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन इज। सिमिलरली, तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार रिफ्रेस कर देती हूँ। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इनपुट्स जो हम किसी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगाते हैं जिससे हमें अमेजिंग मार्वेलस रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जो इनपुट आपने लगाए हैं, जो आउटपुट को इन्हांस करते हैं, आप इस आइडिया से लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। अब वो पैसा हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, टाइम हो सकता है। यू डू ऑल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विद दिस आइडिया दैट इट इज गोइंग टू गिव यू अ प्रॉफिट, इट इज गोइंग टू गिव यू अ रिजल्ट। यानी कि अगर आपने 10 लगाया है तो आपको बदले में 12, 13, 14, 15, 20, 50, 100 जो भी है वो बढ़ करके बनकर वापस मिलेगा। सेम तरह की इन्वेस्टमेंट हमें ह्यूमंस के साथ ही करनी होती है in order to change this resource from the basic core crude resource that it is into a much refined way which will have way more potential to achieve way higher things and give a way higher output. So what are the investment that we can and we make in humans? दो इन्वेस्टमेंट होती है, एडुकेशन होता है और हेल्थ होता है। यानी कि आप दिमाग तेज कराओगे और आप फिजिकली लोगों को एबल्ड बनाओगे। ये ह्यूमन को एक रिसोर्स से कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, और जितना ज्यादा बेटर ये इन्वेस्टमेंट होगा उतनी बेटर वो कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज इन जापान की बात करते हैं। जापान में बच्चे देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी डेवलप्ड नेशन को जब देखते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्रेसिंग नेशन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, इंसान तो थे, इंसानों ने मेहनत की, उनको एडुकेट किया गया, वो हेल्दी थे, whatever, but along with that we also feel that the money generation is happening with the help of the production, the natural resources। कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तेल का कुआं मिलता है, मिडिल ईस्ट का एक परसेप्शन है हमारा कि इनके पास ऑयल रिसोर्सेज जो है वो बहुत है, इसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा इनकम आती है। वैसे ही कुछ और रिसोर्सेज आपके अलग अलग देशों में अवेलेबल है। इंडिया का एग्जाम्पल ले ले तो हमारे पास मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन जनरल नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल है। We are blessed with all of these things. जापान का एग्जाम्पल देखो, जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो अब उनका डेवलपमेंट जो है वो काफी चैलेंजिंग हो सकता था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जापान ने क्या किया है? जापान ने एक ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है, जहां पे यू नो guys, just 1 second. So jahan pe what they have done is that they have not been dependent on the natural resource. Natural resource पे dependent नहीं है। हम खेती बाड़ी करनी है, हमारे पास पानी ज्यादा होना चाहिए, हमारे पास मिनरल, हमारे पास एग्रीकल्चर, नहीं, none of that works for them. उन्होंने एक कॉन्क्रीट जंगल क्रिएट किया है। इस कॉन्क्रीट जंगल में उन्होंने फिगर आउट किया है कि कैसे वो बेटर से बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करके पूरी दुनिया को वो चीज सेल कर सकते हैं।
So what they have done is they did not depend on the natural resource because they did not have any. The only resource that they had their hands on, their access to, were the people, the population. And this Japan very unique सी जगह है because we know that everything that they create gets destroyed every now and then because it is an epicenter and a very area which is extremely and an area which is extremely prone to earthquakes. So whatever they create leads to a lot of destruction also, right? But what they did was they focused on educating all their population. They focused on producing the best health services for and access for all their population. So the people of Japan now are very efficient, even if they are not using the other natural resources, even if they do not have the access to all other natural resources, they still are able to produce just by the conversion from a human resource to a great human capital, and the production has gone really higher up. Efficiency and the technology both are evolved by the people, which has made this country really rich and developed. तो जापान ने क्या किया? जापान ने बोला हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास लेकिन रिसोर्स है। वो रिसोर्स कौन सा है? वो है हमारे ह्यूमंस। हम हमारे ह्यूमंस को डेवलप करेंगे, हम इनको पढ़ाएंगे, हम इनको अच्छा हेल्थ देंगे, और ये जो काम करके कैपिटल प्रोड्यूस करेंगे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्स अकेला नहीं कर सकता है। एंड दैट इज द एग्जाम्पल दैट दे हैव सेट। दे हैव रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो जब आप किसी इंसान को पढ़ाते हो, लिखाते हो, उसको बहुत अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज देते हो, the result that they produce is marvelous. The result that they are ultimately giving out is the best investment that's possible, right? And even if you don't have access to any natural resource, you still are able to do the production of great capital. And this can be seen directly in the form of higher incomes, higher productivity, better trained personals in there, as well as the higher productivity of those healthier people. तो नॉलेज तो है, वो इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रेस में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हमको दिखती है। But along with this knowledge, what other thing that they have is the great productivity because they have also invested in their healthcare services. So investment in human resources can give higher rates of return in the future. नेचुरल रिसोर्सेज में आप अगर प्रोड्यूस इन्वेस्ट कर रहे हो तो नेचुरल रिसोर्सेज कई बार एग्जॉस्टेबल होती है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। बट अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को आप डेवलप करते जाओगे तो वो हमेशा नेचुरल रिसोर्स विद और विदाउट ऐसी प्रोडक्टिविटी देता जाएगा जो हमेशा आपको सस्टेन कराएगा, ग्रो कराएगा, प्रोग्रेस कराएगा और डेवलप कराएगा। दिस इन्वेस्टमेंट इन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे एक घर की खरीदारी कोई भी इंसान या एक जमीन की खरीदारी कोई भी इंसान किस उम्मीद से करता है? वो इस उम्मीद से करता है कि अगर मैंने 100 रुपए इसमें लगाए हैं तो ये 150 रुपए बनकर वापस आएंगे। बट ये 100 रुपए अगर आप एजुकेशन और हेल्थ के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दो ह्यूमंस के ऊपर, तो ह्यूमंस इस 100 रुपए का लाख रुपए तक बनाने की पोटेंशियल रखता है, जो किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत लिमिटेड है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट कन्वर्जन बिकॉज ह्यूमन का नॉलेज एंड हेल्थ is unstoppable, is limitless. They can go from anywhere to anywhere. So educated parents are found to invest more heavily in the education for their children, and they are also conscious of proper nutrition and hygiene. Someone who is aware, who has themselves had the education, who has themselves had the exposure, for example me, मैं अगर एक पेरेंट बनती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे एजुकेशन की पावर पता है, मुझे एजुकेशन का पोटेंशियल पता है, मुझे बिकॉज इस सारे अवेयरनेस और एक्सपोजर की वजह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पोटेंशियल और उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस पता है। When I bear a child and I tend to have when I have a child, or if I'm taking care of any other child and a bunch of children, let's just say, I will always be promoting and encouraging the idea of educating them as much as possible, providing them the best healthcare services as much as possible, because I understand the potential of it, I understand the investment that it does. वहीं पे लेकिन बच्चे जब चैलेंज आता है एक गरीब इंसान के साथ तो it becomes a little obstructive. We'll discuss about that. Let's quickly look at this question. Dash and dash are the major determinants of the earning of any individual in the market: skill, wealth, family background, and education. What are the major determinants of the earning of any individual in a market?
Okay, so we know that education for sure is very very important. एडुकेशन के साथ वेल्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हम खुद जनरेट करते हैं. एडुकेशन के साथ साथ जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो होगा स्किल. स्किल इज व्हाट विल गेट अस वेयर वी विल हैव एक्सेस टू प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर कैपिटल एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो मूविंग ऑन. एडुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है जो किसी भी इंडिविजुअल के रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है. स्किल बिल्ड करता है सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, स्किल फॉर्मेशन फर्दर अहेड, एंड दैट इज व्हाट जनरेट्स द वेल्थ. अब बात आती है कि एक इंसान जो खुद एडुकेटेड है एंड हु हैज द मीन्स, एंड एक इंसान जो नहीं है वो किस चीज में रिजल्ट कर सकता है. तो दो तरह की साइकिल्स है जो ह्यूमंस जनरेट करते हैं. एक हमारा होता है विशियस साइकिल, एक हमारा होता है वर्चुअस साइकिल. नाउ विशियस साइकिल एंड वर्चुअस साइकिल का क्या खेल है. वर्चुअस साइकिल की जब हम बात करते हैं, वर्चुअस साइकिल इज ऑब्वियसली द गुड साइकिल. ठीक है, इट इज द गुड cycle, whereas the vicious cycle is like the bad cycle. So this is a good cycle and this is a bad cycle. ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या मतलब होता है. मानो मैंने मेडिटेशन ट्राई की है, ठीक है, एंड आई हैव फिगर्ड आउट दैट इट हेल्प्स मी अ लॉट. And it is just generally helping me out in with my mental well-being, and it's just helping me generally with my mental well-being and my social well-being. It's just profiting me a lot and progressing in general with my health, because I've tried and tested it and I've implemented it in my life. I'm going to promote it a lot to my friends also, and in general to other people around me as well, right? Because I've tried it, so I know, I'm well aware of the benefits that it has. अगर किसी ने नहीं किया होगा तो उसे प्रमोट नहीं करेगा, उसे नहीं पता होगा. हो सकता है उसके पास मीन्स ना हो इन टर्म्स ऑफ मे बी दे डोंट हैव द टाइम टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, दे डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, दे डोंट हैव द रिसोर्स टू गो टू अ प्लेस वेयर दे कैन ट्राई मेडिटेशन एटसेट्रा, राइट? अब इसकी वजह से दो साइकिल जनरेट हो रही है. एक इंसान जिसने मेडिटेशन ट्राई किया, उसे लगा कि उसकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, हेल्थ के इम्प्लीकेशंस अच्छे हो रहे हैं, मेंटल वेलनेस हो रही है, पीस है इन जनरल लाइफ में. वेराज एक दूसरा इंसान जिसने ट्राई नहीं किया है, वो अपने स्ट्रेस के साथ कैसे कॉम्बैट करना है उसे पता नहीं चल रहा है, वो उसी लाइफ को लीड कर रहा है. उसके बाद उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस जो शायद वो ओवरकम कर सकता है, बट बिकॉज उसे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, द एंड रिजल्ट का इंपॉर्टेंस का अवेयरनेस नहीं पता है, दे विल कंटिन्यू विद देयर रेगुलर लाइफ and will not promote meditation or do whatever. The same thing happens with education. एडुकेटेड लोग जो होते हैं, सबसे पहले तो बिकॉज दे आर एडुकेटेड, देयर लिविंग स्टैंडर्ड, देयर मीन्स ऑफ इनकम इज बेटर एंड दे आर बेटर ऑफ देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल इन द सोसाइटी. Whereas the people who are not educated will be not very skilled, will be taking over unskilled jobs which will not be paying them very well, which will not be compensating them very well in life. And because of this, they are going to have an obstacle over there in accessing a good education facility, and they may not even want to get their children educated because they would feel that इनको पढ़ाने लिखाने से अच्छा है कुछ काम करा दो लाइफ में, और वहां से पैसे जनरेट करेंगे तो उन पैसों से हमारी मदद होगी सर्वाइवल में. तो एक्सपोजर और अवेयरनेस की कमी है, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस जो है वो लैक करती है. दूसरा क्या होता है, मीन्स की लैकिंग होती है, क्योंकि लोग स्किल्ड है, एडुकेटेड है, उनके पास बेटर जॉब्स होते हैं, तो दे आर एबल टू एक्सेस एडुकेशन. वेयर एज द पीपल हु हैव नॉट बीन एडुकेटेड, हु आर अनस्किल्ड, दे डू नॉट इवन हैव द एक्सेस टू एडुकेशन. सो ये दोनों चीजें जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं. अब इसकी वजह से एक साइकिल जनरेट हो जाता है. अब ये साइकिल किस चीज का होता है जो जनरेट होता है? पहले केस में ये होगा कि जो लोग एडुकेटेड हैं बाय देमसेल्व्स, हु आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ नॉट बीइंग एडुकेटेड और द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एडुकेटेड, वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि एडुकेशन की क्या फैसिलिटी है. तो अगर उनके पास थोड़ी तंगी भी होती है, फिर भी दे विल इंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन गेट एडुकेटेड सो दैट दे कैन प्रोग्रेस, डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ बेटर ह्यूमन रिसोर्स एंड हेंस इनटू अ ह्यूमन कैपिटल. सो दे आर जनरेटिंग अ साइकिल
दो वजह से साइकिल जनरेट हो रही है, फिर से रिआइटरेट कर रही हूँ। पहला ये, क्योंकि वो खुद एडुकेटेड और स्किल्ड थे, उनके पास बेटर मीन्स थी। इट डजंट मीन दैट एवरी एडुकेटेड पर्सन हैज लाइक अ लॉट ऑफ गुड मीन्स एंड ऑल, इनके पास बेटर मीन्स थी। एंड सेकेंड, उनके पास अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी था एडुकेशन का। Whereas on the contrary, the second hand, in the second scenario, people who were not educated with themselves, not very exposed to the idea of the understanding or the idea of the understanding of the importance and significance of education, तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों जरूरी है, क्यों इतना important है, क्यों necessary है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास मीन्स भी नहीं है, क्योंकि वो खुद एडुकेटेड नहीं थे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन की वजह से वो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहेंगे। इन दोनों केसेस में एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो जो वेल एडुकेटेड लोग होते हैं वो थोड़े से तो एडवांटेज्ड होते हैं इन जनरल इन सोसाइटी, राइट। So they understand the importance of human capital formation and will always push for their children to get educated. एक educated इंसान कभी नहीं बोलेगा कि अरे मेरे बच्चे नहीं पढ़े तो क्या हो गया। वो हमेशा प्रमोट करना चाहेंगे और कहेंगे कि डजंट मैटर, मेरे को कितनी भी दिक्कत हो जाए, ठीक है, मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, मेरे पास कितने भी पैसों की तंगी हो, मेरी लाइफस्टाइल कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो रही हो, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है क्योंकि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरी तो पहले से खराब है। वहीं पे वो क्या कर रहे हैं, गुड साइकिल जनरेट कर दे रहे हैं, बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन दैट दे विल हैव इन देयर लाइफ एंड इन देयर चिल्ड्रंस लाइफ। वहीं पे विशियस साइकिल, द बैड साइकिल में क्या हो रहा है, ये वो लोग हैं जो अनएडुकेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो लोग हैं जो खुद अनएडुकेटेड है। क्योंकि ये अनएडुकेटेड है, इनको इंपॉर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की, रेलेवेंस की एडुकेशन का पता नहीं है, ये डिसएडवांटेज्ड खुद भी है, इनके पास लैक ऑफ मीन्स है, क्योंकि खुद पढ़ाई नहीं की है तो शायद पैसे भी ना हो। कई बार पैसे होते भी हैं, इवन अनएडुकेटेड पीपल आर रिच एंड दे हैव द मनी बट दे डू नॉट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सो दे विल नॉट ले एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। तो ये अनएडुकेटेड रहते हैं और इसी स्टेट में अपने बच्चे को भी रखते हैं। अब इनका बच्चा भी अनएडुकेटेड रह गया, वो अपने बच्चे को अनएडुकेटेड रखेगा क्योंकि बस ना उसके पास मीन्स होगी ना एक्सपोजर होगा। वहीं पे वर्चुअस साइकिल वाले जो बच्चे एडुकेटेड हो गए, चाहे बेस्ट एजुकेशन मिली या बहुत average education मिली, in both the cases because they have gained education, they understand the meaning and the importance of education and they would want to educate their children further, right? तो ऐसे generate होती है दो cycles, vicious and virtuous। चलो अब बात करते हैं कि लोग जब काम करते हैं तो वो दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। वो दो तरह की एक्टिविटीज क्या होती हैं, पहले आप ये समझ लो कि जो भी एक्टिविटी है बच्चे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिस भी काम से आप जनरेट कर सकते हो वेल्थ, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि कुकिंग से भी जनरेट किया जा सकता है वेल्थ, जैसे कि इंजीनियरिंग करके जनरेट किया जा सकता है वेल्थ, जैसे कि आप डॉक्टर बन के कर सकते हो, जैसे कि आप टीचर बन के कर सकते हो। ऐसे कई सारे प्रोफाइल्स हैं जिन तरह के काम को परफॉर्म करके आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। इन सारे एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, व्हिच बेसिकली कंटेन्स एंड पर्टेन्स टू द पोटेंशियल ऑफ earning and having a certain remuneration and compensation in return of providing the goods or services in exchange, ठीक है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं। ये एक्टिविटीज या तो आप घर पे परफॉर्म कर रहे होते हो, या ये एक्टिविटीज आप बाहर जाकर के दूसरे लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे होते हो और उससे पैसा बना रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं एम्बाई में पढ़ाती हूँ, यहाँ पे ये मेरा काम है, तो आई एम पेड अ सैलरी फॉर दिस, राइट, आई एम कॉम्पनसेटेड फॉर दिस, सो दिस बिकम्स दिस इज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ाने से पोटेंशियल है, पढ़ाना एक पोटेंशियल रखता है कि मैं जाकर के जॉब सीख कर सकती हूँ और इसके बदले मुझे कॉम्पनसेशन मिल सकती है। दूसरा तरीका है, ये सेम जॉब को मैं घर पे परफॉर्म करूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं, मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ा दूं, मैं अपनी बहन के बेटे को पढ़ा दूं, ऐसे करके मैं किसी और को पढ़ा रही हूँ, बट उसके एक्सचेंज में मुझे पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन ये जो टीचिंग का जॉब है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज ये पोटेंशियल रखता है जिसकी मदद से मैं जनरेट कर सकती हूँ वेल्थ। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह की होती है, एक मार्केट एक्टिविटी होती है, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है, जिसके ऊपर हम ड्वेल करेंगे आगे। तो दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मल्टीपल तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो।
एक ऑफ कोर्स पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग वेल्थ के बेसिस पे, दूसरा नेचर ऑफ जॉब्स के बेसिस पे। ठीक है, तो दूसरी चीज जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो नेचर ऑफ जॉब्स के बेसिस पे हो रहा है, यानी कि जो काम हो रहा है उसका नेचर क्या है। अगर आप जैसे डायरेक्टली नेचर से इंटरैक्ट कर रहे हो, नेचर से इंटरैक्ट करके प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप प्राइमरी एक्टिविटी करते हो। अगर आप नेचर से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, तो आप सेकेंडरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। अदरवाइज टर्शरी विच इज द सर्विस सेक्टर, इसको थोड़ा डिवाइड इन करते हैं और डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है? प्राइमरी एक्टिविटी से हमारा मतलब है प्राइम। प्राइम क्या होता है? तो सबसे पहले दुनिया में क्या आया? सबसे पहले तो नेचर फॉर्मेशन हुई, पेड़ आए, पौधे आए, जानवर आए, ह्यूमंस आए। ठीक है, ह्यूमंस ले लो, नेचर ले लो, प्लांट्स ले लो, जो भी है, सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन हुई, इन्होंने सर्वाइवल सीखा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाया पैसे अर्न करने का। बट द पॉइंट इज दैट नेचर सबसे पहले आता है, ये प्राइमरी चीज है, प्राइम है, फर्स्ट है ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हर एक एक्टिविटी जो हम इस प्राइम चीज से इंटरैक्ट करके कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर। नेचर से इंटरैक्ट करके, नेचर की मदद से हम किसी गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं डायरेक्टली, उसको हम नेचुरल रिसोर्स बेस्ड एक्टिविटी कहते हैं, और इनको हम प्राइमरी एक्टिविटी में क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि फार्मिंग। फार्मिंग में क्या हो रहा है? मैं सीधा सॉइल, सीड, प्लांट, ये सारा कल्टिवेशन कर रही हूँ, सीधा सीधा नेचर से इंटरैक्ट कर रही हूँ और प्रोडक्शन कर रही हूँ। दूसरा फिशिंग, फिश ब्रीडिंग हो रही है, पिसीकल्चर हो रहा है। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग कर रही हूँ, डेयरी फार्मिंग कर रही हूँ, एनिमल्स को ब्रीड कर रही हूँ, एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दे रही हूँ, उनकी खातिरदारी कर रही हूँ, उनका देखभाल कर रही हूँ, अंडे प्रोड्यूस कर रही हूँ, मीट, वुल, जो भी प्रोडक्ट्स उनसे निकल रहे हैं। तो ये नेचर का एक रिसोर्स है। तो आप बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी में क्या करोगे? ध्यान रखोगे, नेचुरल रिसोर्स से आप जो है इंटरैक्ट करते हो, प्लस उनको एक्सप्लॉइट करते हो, या उनको एक्सप्लॉइट करते हो, आई वुड से, नॉट आई वुड से कि प्लस एक्सप्लॉइट करते हो। सो इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद द नेचुरल रिसोर्स, और यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड यू आर प्रोड्यूसिंग अ गुड, ऐसे सारे एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फार्मिंग इन जनरल, फिशिंग, एग्रीकल्चर, all of this is qualified under primary activity। अब प्राइमरी सबसे पहले नेचर आया, नेचर ने हमको सामान दिया, पेड़ दिए, पौधे दिए, जानवर दिए। वो पेड़, पौधे, जानवर जो फल, फूल, दूध, अंडे जो भी दे रहे हैं, उस प्रोडक्शन को हम प्राइमरी एक्टिविटी कह रहे हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी के बाद दूसरा क्या आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी में नेचर ने बनाया, दूसरा कौन बना सकता है? क्रिएटर जो बन जाता है वो होता है मैन मेड। तो दूसरा होता है मैन मेड गुड्स प्रोडक्शन, है ना। नेचर ने तो जो करना था कर लिया, उसके ऊपर क्या करते हैं हम? नेचर से सामान लेकर के उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने ह्यूमन इंटरवेंशन से। ह्यूमंस जो है इंटरवीन करते हैं और ह्यूमन इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसे बदलते हैं। ये होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये सेकेंड स्टेज पे आ रहा है। प्राइमरी स्टेज में हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया, उससे इंटरैक्ट किया और उससे क्या निकाल लिया? रॉ मटेरियल्स। अब कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उनका ट्रांसफॉर्म होना, उनका चेंज होना, उनका प्रोसेस होना, वो बहुत जरूरी होता है। तो जो ये प्रोसेसिंग वाला मेथड होता है, जहां पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अब ये इंडस्ट्रीज में हो, फैक्ट्रीज में हो, जहां पे भी हो, ये सेकेंड स्टेज बन जाता है ना, ये सेकेंड स्टेप बन जाता है। ये क्या बन जाता है? सेकेंड स्टेप बन जाता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज, फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे भी किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है,
सामान जो रॉ मटेरियल फॉर्म में आया है उसको उठा करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ऐसे सारे एक्टिविटीज को आप सेकेंडरी एक्टिविटी की तरह क्वालिफाई करते हो। फाइनली आता है हमारा टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी बेसिकली थर्ड स्टेप हो जाता है। अब ये क्या है कि हमने पहले दो स्टेप में क्या करा है, हमने करा है प्रोडक्शन गुड्स का, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया है हमने इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या किया है, गुड्स का प्रोडक्शन किया है। थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में हमारा नो प्रोडक्शन हैपेंस। प्रोडक्शन को हमने कर दिया, या तो नेचर से लिया या मैन मेड बनाया, वो प्रोडक्शन का काम फिनिश हो गया। तो प्रोडक्शन के बाद क्या बच जाएगा, प्रोडक्शन के बाद बच जाता है सर्विस प्रोवाइड करना। सामान तो बना लिया लेकिन सर्विस प्रोवाइड करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस और भी कई सारी सर्विसेज हैं। तो टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें क्या प्रोवाइड होती है, सर्विस प्रोवाइड होती है, सर्विस जनरेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्विस जनरेशन होता है। सर्विस जनरेशन, तो ये हमारा हो जाता है थर्ड एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी का काम बहुत ज्यादा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करना, ठीक है। क्या होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सपोर्ट करना। क्योंकि देखो बिना इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और आपका लोन सर्विसेज, ऐसी सारी चीजों के बिना दोनों ही, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी हो या सेकेंडरी एक्टिविटी हो, उसको परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो टर्शरी का काम होता है कि वो सपोर्ट करे। पहले तो जो सेक्टर्स है वो प्रोडक्शन करते हैं, टर्शरी उनको सपोर्ट करता है सर्विस प्रोवाइड करके, दैट इज योर सर्विस सेक्टर। नाउ विद दिस we come to the next question, which is which of these jobs fall under service sector। आपको बताना है बैंकर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर या फिर टेलर। So service sector is basically providing of services and banking। हमने पढ़ा कि बैंकर का काम जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने का होता है। यहाँ पे हालांकि टेलर को भी आप सोच सकते हो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। इट्स नॉट जस्ट वन आंसर, इट्स टू आंसर्स। टेलर को भी हम सोच सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर है। टेलर प्रोडक्शन नहीं करता है बच्चे, टेलर जो है वो सर्विस प्रोवाइड ही करता है, क्योंकि वो कपड़ा लेता है और वो कपड़े से कुछ नया बनाता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्शन पर से, बट इट्स लाइक एन ओवरलैप बिटवीन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी एंड द टर्शरी सेक्टर। बट अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो एग्जैक्टली उसको वहां पे हम वैसे कंसिडर नहीं करते। अभी आपको याद होगा मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी मार्केट, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। कहीं पे जो है लोग पैसे कमाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कहीं पे लोग पैसे नहीं कमाते। तो मार्केट एक्टिविटीज जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। ये गारंटी करती है पेमेंट एंड रीन्यूमरेशन, यानी कि हर एक एक्टिविटी जो पोटेंशियल रखती है जिससे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब आप उसको इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे हम मार्केट और नॉन मार्केट डिटरमाइन करते हैं।
कुकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गई, देयर आर 10,000 ऑफ जॉब्स। वो सारे जॉब्स है जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, आगे जाकर नौकरी कर सकते हो। अगर आप इन जॉब्स को सर्विस के फॉर्म में या प्रोडक्शन के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो टू अदर पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड टू अर्न मनी इन एक्सचेंज, तो आप मार्केट में उसे अवेलेबल करा रहे हो, ये मार्केट एक्टिविटी कहलाती है। जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, जो रिटर्न में हम बदले में पैसा लेना चाहते हैं, रिन्यूमरेशन लेना चाहते हैं। सेकेंड एक्टिविटी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जो सेल्फ कंजम्पशन के पर्पसेस के लिए प्रैक्टिस की जाती है, एंड फिक्स्ड एसेट्स के फॉर सेल्फ रिक्वायरमेंट्स। यानी कि मैंने अगर यहाँ पे इम्बाइब में पढ़ाया और उसके बदले सैलरी ली, तो टीचिंग मेरी मार्केट एक्टिविटी हो गई। मैंने घर पे जाकर के अपनी बहन के बच्चे को पढ़ाया और मेरे को कुछ पैसे नहीं थे, ये नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई। मैं परफॉर्म दोनों ही केसेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी करी हूँ, बट एक मैं पैसे के लिए, रेन्यूमरेशन के लिए करी हूँ, दूसरा फ्री में कर रही हूँ। तो जहां पे मुझे पैसे नहीं मिल रहे, वो मेरी नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जा रही है, वो पर्सनल कंजप्शन के लिए हो रही है। जैसे कि मम्मियाँ हमारे घर पे खाना बनाती हैं, अगर वो उस चीज का बिजनेस कर रही हैं और वो बाहर टिफिन सर्विसेज दे रही है या कुछ ऐसा कर रही है, या अगर आपके पापा ऐसा कर रहे हैं कि टिफिन सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो जाती है। बट अगर वो आपके लिए बना रहे हैं कि अरे हमारे बच्चे को पसंद है, हमारे बच्चे के लिए बना देते हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पोटेंशियल एक्टिविटी रहते हुए भी जो पैसा जनरेट कर सकती है, आप डिसाइड कर रहे हो कि वेदर उसके बदले में पैसे लेने हैं या नहीं लेने। पैसे ले रहे हैं तो मार्केट, नहीं पैसे ले रहे हैं तो नॉन मार्केट, सिंपल इज दैट। इफ यू मेकिंग इट अवेलेबल फॉर अदर पीपल टू बी बाइंग इट एंड पेइंग फॉर यू, इट विल बी इन द मार्केट, देन विल बी मार्केट एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज में थोड़ी जॉब्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन रिसोर्स तो दोनों मेन और विमेन दोनों है ना, दोनों काम करते हैं, दोनों हमेशा से काम करते आए। सैडली एनफ देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जहाँ पे वी हैव सीन that females have done the same set of jobs but have not basically earned a lot of money, whereas men have got the respect, have got the remuneration for all the jobs that they have done and they have earned the money. तो अब औरतों की प्लाइट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और औरतों को एज अ रिसोर्स हम समझेंगे। विमेन traditionally, because we are a part of also a patriarchal society, not just in India, across the world we have seen we are a part of the patriarchal society, हम एक पेट्रियार्की का हिस्सा है। और पेट्रियार्की क्या होती है? पेट्रियार्की वो सोसाइटी को हम बोलते हैं जहाँ पे बेसिकली फादर रूल ऑफ फादर होता है, द मैन रूल्स द सोसाइटी। तो रूल ऑफ फादर होता है तो वो पेट्रियार्की कहलाती है। पेट्रियार्की में क्या होता है? डोमिनेशन होता है मेन का, वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आइदर वे। तो ट्रेडिशनली ये देखा गया कि जेंडर बायसनेस एंड स्टीरियोटाइपिंग in terms of rules and responsibilities being conducted in the society by people have been generated। जहाँ पे क्या किया गया है, ऐसा प्रेज्यूम कर लिया गया है कि औरतों का काम है घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर का ख्याल रखना, घर के काम करना। Whereas the same jobs may be being performed by the man outside the house but will be paid for it। यानी कि मर्दों का काम है घर के बाहर जाना, काम करना, पैसे कमाना और पैसे लाकर घर पे देना, और उस बात के लिए उनको एक एडिशनल रिस्पेक्ट दिया जाता है। Whereas even if the female is stepping out of the family, stepping out of the house, doing the same job, but still not being compensated properly, या फिर कॉम्पनसेशन के अलावा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सेम रिस्पेक्ट, सेम रिकग्निशन, सेम एक्नॉलेजमेंट इज नॉट गिवन टू द फीमेल्स। सो वुमेन हैव ट्रेडिशनली बीन ट्रीटेड लाइक दैट। एक दूसरी प्रॉब्लम ये रही है कि औरतों के एजुकेशन को सेम इम्पोर्टेंस भी नहीं दी गई है ना। औरतों के एजुकेशन को इनफैक्ट देयर वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वेयर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेटेड। औरतों को अलाउड ही नहीं था एजुकेट होना। सारी पढ़ाई, सारी लिखाई जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए थी। तो ट्रेडिशनली औरतें कम एडुकेटेड रही हैं। धीरे धीरे लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो रही है, बट धीरे धीरे हो रही है, अभी 100% नहीं हुई है। सो बिकॉज पीपल, विमेन हैव हैड लेस एजुकेशन, ऑफकोर्स उनका स्किल फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो कम रहा है, तो वो ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर जॉब्स ही परफॉर्म करती आई हैं। अगर वो घर के बाहर निकली भी हैं काम करने के लिए, तो दे हैड टू टेक अप द jobs which were of unskilled and unorganized sector and which was paying them less money, जो उन्हें कम पैसे दे रहा था, it was paying them less money।
right? Now, mostly women, as a result of this, have been working in unorganized sector, कि जहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट जॉब है, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, प्रॉपर फ्लो नहीं है, प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, ऐसी जगहों पे उनको जॉब्स लेने पड़े, मीनियल जॉब्स लेने पड़े, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द स्किल एंड द नॉलेज एंड दे वांटेड टू वर्क, दे वांटेड टू सस्टेन देयर फैमिली और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अर्निंग ऑफ द फैमिली. They have not been able to do that. They are traditionally considered physically inferior to men. हालांकि बायोलॉजिकली इस स्टीरियोटाइपिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें नहीं कर सकती है, बट हमने पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा होने की वजह से एक प्रिजम्पशन बना के रखी है कि women are traditionally physically weaker, inferior, and are believed because of this understanding to do less work, and also because of this are paid less in the society. So there has been a disbalance over there. So that is another problem, and that has been traditionally a huge challenge for the females as well. लेकिन हमारा एक रिन्यूमरेशन एक्ट आया है 1976 में. इस एक्ट के तहत साफ साफ बोला गया है कि औरतों को सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ रिन्यूमरेशन दिया जाएगा, क्योंकि वो औरतें हैं, इस वजह से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा और उनको कम पैसे नहीं देगा, कम रिकग्निशन, कम एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा. जो वो डिजर्व करती हैं, जो एक मर्द को मिलता है, वही सेम काम, सेम आर्ट्स के लिए, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए औरतों को भी मिलना चाहिए. बट एनीवेज इट स्टिल हैज बीन एग्जिस्टेंट. कहीं ना कहीं एक प्रिजम्पशन बनी हुई है. In today's date, even when we have females who are working outside, somehow it is still a general expectation that when it comes to managing the household, grocery figure out करना, क्या घर में खाना बनेगा, कभी occasionally करना, because they are working, all of this still becomes the responsibility of the women, even of the most educated, modernized, liberated women, and is not taken care of by the men. Okay. अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, तो हमने बहुत शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था. नाउ सिंस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द चैप्टर, वी आर डूइंग अ क्विक रिविजन ऑफ इट. हमें पता है कि पॉपुलेशन की जो मेजर पैरामीटर है जो उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करता है वो होता है एजुकेशन और हेल्थ केयर. एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी साथ साथ जुड़ जाता है. अब बच्चे ऐसा है कि किसी भी पॉपुलेशन को अगर हमें छोटे से बड़ा करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सफुलनेस, हमने पहले ही देखा है कि हमको करना होगा इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट हम करेंगे एजुकेशन और हेल्थ केयर के फॉर्म में. तो देखो, सबसे पहले बताओ कि किसी भी जगह की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो आपको पैरामीटर चाहिए. तो जिन टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे वही आपके पैरामीटर्स भी बनेंगे उस पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए. द बेटर द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द बेटर वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, द बेटर वुड बी द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. तो हमारे पास एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और है हमारे पास हेल्थ केयर. तो सबसे पहले एजुकेशन से शुरू करते हैं. एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है गाइडेंस, एजुकेशन प्रोवाइड करता है नॉलेज, और एजुकेशन प्रोवाइड करता है हमको ट्रेनिंग. So there is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with special emphasis on girls. तो एजुकेशन में हमने देखा है कि अब हम एजुकेशन से क्या करना चाह रहे हैं, हम लोगों को नॉलेजेबल बनाना चाह रहे हैं, हम लोगों को डिटरमिन बनाना चाह रहे हैं कि वो आगे चल करके अपने आप को इक्विप्ड और पोटेंशियल से भरा महसूस कर सके. वो उन्हें गाइडेंस देती है, अवेयरनेस देती है, नॉलेज देती है, स्किल डेवलपमेंट देती है, ट्रेनिंग देती है. लेकिन ऑफ कोर्स एजुकेशन जो है ट्रेडिशनली देखा गया हैज बीन मोर फोकस्ड ओवर मेन. हाउएवर वी हैव चेंज्ड दिस अ लॉट, बट वी आर ओनली चेंजिंग इट फर्दर अहेड. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन मोर एंड मोर एक्सेसिबल टू पीपल, मोर एंड मोर अटेनेबल फॉर पीपल, जहाँ पे रिटेंशन और क्वालिटी जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की वो स्पेशल एम्फेसिस के साथ लड़कियों के लिए बेहतर से बेहतर हो सके. ठीक है. So a lot of initiatives have been taken by the government, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट हैज बीन डन. सर्व शिक्षा अभियान ऑफ कोर्स इज नॉट just for girls. The idea is to spread education as much as possible. In fact, एक स्टडी है जो ये बताती है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतने सारे इश्यूज हैं, उसे एजुकेशन से सॉल्व किया जा सकता है.
एडुकेशन अगर आप देते हो, कई सारे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज वाले चैप्टर में देखे हैं और भी चैप्टर्स में पढ़े, जहाँ पे हमने देखा है कि लोगों की गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाते, विशियस साइकिल क्रिएट कर देते, राइट। एडुकेशन अगर इस साइकिल को ब्रेक करेगा तो वो बच्चे जो आज स्कूल में नहीं है, जो वहाँ पे आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं, वो आज से 20 साल बाद जहाँ पे अगर 30,000 रुपए कमाएंगे, ठीक है, कमा सकते हैं, अगर वो एडुकेटेड ना हो तो वो मात्र 10,000, 8,000, 15,000 रुपए में ही सिमट कर रह जाएंगे। बट इफ दे डू गेट एडुकेटेड, आराम से दे विल बी अर्निंग 30,000, 40,000, 25,000, वे मोर देन व्हाट दे वुड बी अर्निंग विदाउट बीइंग एडुकेटेड। इन सारे आइडियाज को दिमाग में रख करके ये बोला गया कि अगर इन सारे बच्चों को जो स्कूल्स के बाहर है, जिन्हें आइडियली जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं, जिन्हें आइडियली स्कूल्स के अंदर होना चाहिए, आप उनको अगर लेते हो, उनको आप एडुकेट करते हो, तो क्या होगा, उनका पोटेंशियल डेवलप होगा, रिसोर्स से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बेटर रिसोर्स में, एंड देन टू ह्यूमन कैपिटल इज वेल, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, स्कूल्स बनाने होंगे हमें इन बच्चों के लिए। स्कूल्स हैं लेकिन अभी ये सारे बच्चे नहीं जाते हैं, तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से ही स्कूल्स अवेलेबल है। ज्यादा बच्चे आएंगे तो हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एडुकेशन अलोन कैन जनरेट लैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 2 लाख, 20 लाख, ठीक है। आपको टीचर्स चाहिए होंगे इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जगह चाहिए होगी, अगर सारे लोग स्कूल आ जाते हैं। जगह के लिए आप स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन में आप प्लम्बर हायर करोगे, आप मेसन हायर करोगे, उसके बाद आपको और भी स्टाफ लगेगा, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो। एडुकेशन अलोन इज नॉट जस्ट एडुकेटिंग दीज बंच ऑफ स्टूडेंट्स जो आज पढ़े हैं और आज से 15 साल 20 साल बाद एक बेटर रिसोर्सफुल इंसान बनेंगे, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ और हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि हम और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड इज अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ मच वी नीड टू डेडिकेटेडली वर्क इन दिस डायरेक्शन। तो यहीं पे शुरू किया उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान। सर्व मीन्स एवरीवन, शिक्षा एजुकेशन, अभियान इज द रेवोल्यूशन। So the idea is universalization of school education। चाहे जो भी बच्चा हो उसके लिए हमें एडुकेशन एक्सेसिबल बनानी है। अगर वो एक ऐसे बैकग्राउंड से भी आ रहा है जहां पे वो विशियस साइकिल में फंस रहा है, तो लेट्स ब्रेक दिस विशियस साइकिल। हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे कैसे? हम उन बच्चों को एडुकेट करेंगे फ्री में। अब अगर उन पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है अलग बात है, लेकिन मीन्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल नहीं होने चाहिए। 6 से लेकर 14 साल का हर एक बच्चा स्कूल में प्रेजेंट होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर फ्री एडुकेशन मिलेगी उन्हें, ताकि उनका एलिमेंट्री स्कूल का एडुकेशन, बेसिक एडुकेशन जो है वो फुलफिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग एडुकेटेड हो सके, विच विल हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेंस द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑफ द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इतना ही नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ आती है, जो पेरेंट्स के साथ आती है, गरीब पेरेंट्स के साथ, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है ऑफ प्रोवाइडिंग फूड फॉर सर्वाइवल टू देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे उन बच्चों को लालच कहीं ना कहीं देने के लिए, रिटेन करने के लिए पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स के अंदर ये ग्रीड ना आए, बिकॉज मजबूरी है, ये हेल्पलेसनेस के आगे ये डिसीजन मेकिंग ना आए कि हमारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, हम अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, तो ये जाएंगे कहीं पे, अगर पैसे कमाएंगे, 2 पैसे कमाएंगे, तो ये अपने एडुकेशन कर अपने खाना पीना का ख्याल रख पाएंगे, अपने लिए न्यूट्रिशन प्रोविजन कर पाएंगे। तो इन्होंने मिड डे मील शुरू कर दिया विद द आइडिया कि न्यूट्रिशियस फूड जब आप एक टाइम का भी प्रोवाइड करा रहे हो अगर, तो इस चक्कर में कि भाई एक टाइम का खाना तो मुफ्त में बच्चों को वहां मिल जाएगा और न्यूट्रिशियस भी है, पेट भर के खा सकते हैं, लोग वहां पे बच्चों को स्कूल भेजने लग गए, ताकि इंकरेज हो रिटेंशन, इंकरेज हो अटेंडेंस। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे एडमिशन ले भी लेते बट वो स्कूल आते नहीं, वो चले जाते हैं कहीं और काम करने, 300 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, 800 रुपए के लिए, जो पूरे महीने में फैमिली में कंट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर हर दिन उनका एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट उन्हें स्कूल में मिल रहा है, तो द पेरेंट्स डू नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट द फैक्ट ऑफ फीडिंग द चिल्ड्रन एंड टेकिंग केयर ऑफ देम फाइनेंशियली दैट वेज। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय भी किया गया, यानी कि थोड़ी बेटर तरीके से एडुकेशन प्रोवाइड की जाए, इस तरीके के चेंजेस और शिफ्ट्स भी किए गए हैं। एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया। तो कई
कई सारी यूनिवर्सिटीज को जो है बनाया गया है, नए इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हो। साथ ही साथ ओपन इंस्टीट्यूट, ओपन स्कूल, डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप नहीं जा सकते, आप बड़े हो गए हो, अब आपको अपने फैमिली का ध्यान रखना है, बट दैट शुड not be a factor to compromise on your higher education. So you sit at home and you do your learning. That's not going to be a problem. साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मिड डे मील चलाया गया, नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर बच्चों को इंकरेज किया जा रहा है कि आप आओ ज्यादा से ज्यादा। और भी कई सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि लाडली स्कीम चलाया जाता है, जहाँ पे हर 3 साल पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे अगर आप अपनी गर्ल चाइल्ड को पढ़ा रहे हो, लेकिन वो 3 साल पे नहीं मिलेंगे। आप थर्ड स्टैंडर्ड में, सिक्स स्टैंडर्ड में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में एलिजिबल होते हो और सारा पैसा एकत्रित मिलता है। तो दिस encourages them not to send their children to otherwise go work somewhere just to survive, but to be able to go to the school and get educated because they have a factor to look forward to कि कुछ पैसे रिटर्न में हमको मिलेंगे। So let's answer this question on that note. Dash Abhiyan aims at universalizing primary education. Is it Sarv Shiksha Abhiyan or universal education? You have to answer this question, and on this note, I will also take a quick 5 minute break. तो हम 5 मिनट का एक break लेते हैं. I'll be back in 5 minutes. Go ahead, figure out this question, and then we'll move on forward.
Okay, guys, and we are back. So let's quickly see. So Dash Abhiyan aims at universalizing primary education. सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है जो एम करता है. Now talking about health. हेल्थ की बात करें तो द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क. आप एक खुद ही इमेजिन करके देखो सिनेरियो जहाँ पे एक इंसान जो है वो बहुत एडुकेटेड है, बहुत स्किल्ड है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी हेल्थ इश्यूज है. विल दैट पर्सन बी एबल टू डिलीवर? नहीं, राइट. वो अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसके पास हमेशा चैलेंजेस रहेंगे. एंड दैट इज वाई हेल्थ केयर ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क. नेशनल पॉलिसीज इसी वजह से बनाई गई हैं हेल्थ केयर बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन को, ठीक है. एंड यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जानने हैं, जो आपको वैसे भी आते हैं और जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है. So infant mortality rate is the death of a child below 1 year of age. Birth rate is the number of babies born every 1,000 people during a particular period of time. Death rate is the number of people born per 1,000 who die during a particular period of time. ठीक है, तो ये हमारे आपके हेल्थ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हो जाते हैं. सो देयर आर we have worked around it. We have figured out as a government, as a country, as a nation, as an institution, that this has to be fixed, because the number of hospitals that we have, the number of the number of institutions that we have is not enough for the population of 1.4 billion. What we are producing needs to be increasing more and more. We just have 442 medical colleges in our country and 313 dental colleges, right? और सिर्फ 4 states हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र and Tamil Nadu, who have the maximum number of medical colleges, which means it's a very concerning factor for us that बाकी जो सारे देश, बाकी जो सारे states हैं वहाँ पे हमारे पास क्यों और ज़्यादा medical colleges नहीं हैं, ठीक है. लेकिन let's figure it out. Let's hope that it only keeps getting better and we are able to resolve this problem. Now, a quick reminder about the fact of virtual lab experience. But for all your practicals and learning and practices, the best thing over here is that you have to, you just have to make sure when you download this app, and with the help of this app, आपके लिए पूरी प्रैक्टिकल्स का एक्सेस जो है वो खुल जाता है और आपकी लर्निंग बहुत सिंपल और इजी हो जाती है, ठीक है. आप इम्बाइब ऐप और इम्बाइब लेंस ऐप की मदद से भी अपनी लर्निंग जो है वो कर सकते हो. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोस्टली डिटरमिन्ड बाय नेचर ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट, quality of people and raw materials, or availability of raw materials. Which of the following is a factor which tells us about economic development and its determination? Nature of soil, climate, quality of people and raw materials, or availability of raw materials? इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज के बेसिस पे डिसाइड होगी और डिटरमाइन हो सकती है? सो इट विल बी, ऑफ कोर्स हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है, साथ ही साथ ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल्स भी किस तरीके के प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन कर रहे हैं. देखो, जापान के एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं भी हो तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वी कैन डू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, वी नो दैट नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जापान जैसा एग्जाम्पलर हर कोई सेट नहीं कर सकता है, नहीं होता है, ठीक है. अब इसी के साथ हम आते हैं और बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हमने शुरू में ही समझा था कि जब कोई इंसान काम करना चाहता है, ठीक है, उसके पास स्किल हो या ना हो, तो उसके हिसाब से वो अपना काम डिटरमाइन करेगा, स्किल लेबर करना चाहता है या अनस्किल लेबर करना चाहता है. बट द पॉइंट इज व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड हैज द पोटेंशियल टू वर्क एंड बिलोंग्स टू द वर्किंग पॉपुलेशन,
वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है हमारी? वर्किंग पॉपुलेशन हम 15 साल से लेकर के 59 ईयर्स की उम्र के लोगों को बोलते हैं, बिकॉज फिजिकली एंड मेंटली दे आर द बेस्ट इक्विप्ड टू बी एबल टू परफॉर्म एंड गिव बेस्ट प्रोडक्टिविटी आउट देयर, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब वर्किंग पॉपुलेशन में आप ये देखते हो पीपल हु आर वर्किंग टू विलिंग टू वर्क एट एट सर्टेन वेजेस एंड अर्न मनी एंड कॉम्पनसेशन एंड रिन्यूमरेशन, बट उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं, इस सिनेरियो को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स के लोगों को बोला जाता है, क्योंकि उससे छोटे जो है बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका काम होता है एजुकेशन गेन करना, इक्विप होना। और 59 के ऊपर के जो लोग हैं वो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, वो चाहे तो अपना काम कर सकते हैं, बट पोटेंशियल विद द एज स्लोली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग देम एज अ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो जो है ये दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। कौन से दोनों जगह एग्जिस्ट करता है? रूरल एरियाज में भी एग्जिस्ट करता है और अर्बन एरियाज में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रूरल एरियाज में कहाँ एग्जिस्ट करेगा और अर्बन एरियाज में कैसा दिखेगा, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट समझते हैं। रूरल एरियाज में बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं? रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, राइट। तो ज्यादातर फार्मिंग से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल नाम से सुनकर हमें समझ आ रहा है कि सीजनल का मतलब है कि कुछ सीजन रहता है, मौसम की तरह बदल जाता है, और कुछ सीजन नहीं रहता है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट है, वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन के बाद। आपको पूछा जा रहा है एज डिफाइन करने ऑफ वर्कफोर्स पॉपुलेशन। जो हमारा वर्कफोर्स पॉपुलेशन है इंडिया में, वो हम कहाँ से कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? इन जनरल, नॉट इंडिया, इन जनरल वर्कफोर्स पॉपुलेशन किसको माना जाता है? 15 टू 58 ईयर्स, 14 टू 58 ईयर्स, 16 टू 58 ईयर्स। अब आप क्लोज अप्रॉक्सीमेशन लगा लो, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ही क्लोज है 15, 14, 16, लेकिन 58 कांस्टेंट है। तो हमने अपर लिमिट 59 पढ़ा है, बट आप उसको 58 मान लो अभी के लिए। अब आप लोअर लिमिट से जो है अपनी अप्रॉक्सीमेशन लगा लो कि पॉसिबली ये एज जो है वो क्या हो सकती है। So 15 to 59 years is what we have been studying till now. So the correct age over here, what we can understand is 15 to 58 years. ठीक है, 15 से लेकर के 58 साल के बीच में। अब आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो मौसम की तरह रहता है। बेसिकली बच्चे देखो, फार्मिंग जो है ना वो पूरे साल एक तरीके से नहीं होती। फार्मिंग बहुत ज्यादा सीजन पे डिपेंड करती है, हालांकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उस सीजन से रिलेटेड नहीं है। वी विल अंडरस्टैंड, वी गेट इट। अब क्या होता है, फार्मिंग जो है वो अलग अलग मौसम में होती है। तो कभी आप कल्टीवेट करते हो, कभी आप हार्वेस्ट करते हो। तो इस वजह से जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। किसी टाइम पे ज्यादा चाहिए होती है, किसी टाइम पे जो है कम चाहिए होती है। सो पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, जहां पे फार्मिंग में इंटेंसिव काम नहीं होता है। जैसे कि जब आपका सीड सोइंग का काम हो रहा होता है तब ज्यादा काम रहता है। पौधों को लगाना है, उनको सींचना है, उनको फार्म वाटर करना है, एंड सब कुछ ध्यान रखना है। उसके बाद बीच में जो क्या है, पौधे अपना ग्रो कर रहे हैं, you don't have to take care of it, it's growing on its own, so you don't need like a lot of people working on them constantly. When do you need to work people for them to work on it? You need for people to work on them later, जब फिर से जब है हार्वेस्टिंग होने लगती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग होने लगती है का क्या मतलब है? जब कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाता है हमारा सामान, आप उस समय क्या करते हो? विनिंग करोगे, सोइंग करोगे, हाँ सॉरी हार्वेस्टिंग करोगे, उसके बाद वो अलग करना क्रॉप्स को और ये सारी चीज़ों को सॉर्ट करना, ये सब फिर बहुत लेबर इंटेंसिव हो जाते हैं। तो इन सारे टाइम पे फार्मिंग के सेक्टर में, फील्ड्स में फिर से काम बहुत बढ़ जाता है।
तो जब भी हार्वेस्ट का सीजन होगा, जब भी सोइंग का सीजन होगा, ये सारे टाइम पे क्या होता है, ये सारे टाइम पे लेबर इंटेंसिफाइड हो जाता है, इन सारे टाइम पे काम ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है। सो पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, जब यहाँ पे रेगुलर काम होता है। तो यानी कि अगर मान लो एक बड़ा सा फील्ड है, एक बड़ा लेबरर है, एक बड़ा फार्मर है, उसकी बड़ी फील्ड है, उसमें सोइंग का काम है, तो वो 40 लोगों को हायर करता है कि 40 लोगों की जरूरत है यहाँ पे। अब 40 लोगों ने 1 1.5 महीने, 1 महीने, 15 20 दिन जो भी है वो काम किया, अब उनका काम हो गया। अब वो बाकी के 3 महीने उसको जरूरत नहीं है किसी की, उसको जरूरत है फिर 3 महीने के बाद जब हार्वेस्ट होगा तो फिर से बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कट करना है, हार्वेस्ट करना है, विनो करना है, जो भी करना है, फिर उसे 40 50 और लोगों की जरूरत पड़ेगी अगेन एट दैट टाइम फॉर 1.5 months 2 months वट एवर। That person is also trying to save money and not keep hiring these 40 people 50 people throughout the time because काम नहीं है उतना, उतनी जरूरत नहीं है, तो उसने क्या करना है, उसने हटा देना है इन लोगों को। So people during these times are not able to find jobs because this is across the entire एरिया। फार्मिंग जो है पूरी सीजनल है, तो जो भी लोग जब सोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मोटा मोटा साथ में कर रहे हैं, विंटर क्रॉप्स का साथ में कर रहे हैं, समर क्रॉप्स का साथ में कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिनकी अपनी जमीन नहीं है वो एक लैंडलेस लेबरर है, वो एक डेली वेज वर्कर की तरह काम करेंगे। फ्यू सीजन्स आर बिजी विद सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, तो वहां पे बहुत लोगों की जरूरत होती है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। So the next question is, where do you find seasonal unemployment in India? Remote areas, rural areas, urban areas, or both 2 and 3? So think about this question. Seasonal unemployment, वैसे तो ये काफी simple question है, I'm sure you don't need to think about it. But जो हमारा seasonal unemployment है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, या दोनों में ही? Okay, guys, so we have understood that this would be the rural areas. The correct answer would be the rural areas, right? Okay. Now talking about disguised unemployment or underemployment. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब कि जो दिख रहा है वो है नहीं, कुछ और है, करेक्ट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो तो रही है लेकिन लोगों को एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसा दिख नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आप काम करना चाहते हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि काम जो है वो कम लोगों का है लेकिन उसको करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। यानी कि 10 लोगों का काम है, 10 लोगों में आराम से वो बराबर उतना काम हो जाएगा, पर करने के लिए कितने लोग आ जा रहे हैं? करने के लिए 15 लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको और कुछ काम नहीं मिल रहा है, लैंडलेस लेबरर्स है। इनको लग रहा है कि यही तरीका है, यही ऐसे ही हम अपना काम जो है वो निपटा सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, मन में लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज क्योंकि वो काम कम लोगों का है तो जितनी वेल्थ और इकोनॉमी जनरेट हो रही है अदरवाइज अदरवाइज भी उतनी ही होगी। यानी कि डजेंट मैटर कि 15 लोग हैं या कितने लोग हैं, अगर 100 रुपए प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अदरवाइज भी 100 रुपए ही प्रोड्यूस होंगे, चाहे 10 लोग काम करें या 15 लोग काम करें। तो उन्हें महसूस भले हो रहा हो कि वो बहुत काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है, बट टेक्निकली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। एंड दैट इज वाई दिस इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed,
ऑल्सो इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि ये छुपा रहता है। ज्यादातर कहाँ होता है, ज्यादातर आप एग्जाम्पल देखोगे तो उन मेंबर्स में होता है जो लैंडलेस होते हैं या जिनके पास लैंड होता है। फार्मिंग में सेक्टर में ज्यादा देखते हैं कि काम नहीं मिला, तो 3 लोग पहले फार्मिंग कर रहे थे, अब क्योंकि चौथे पांचवें बंदे को भी काम नहीं मिला तो ये दोनों भी आ गए और फार्मिंग करने लग गए, जबकि जरूरत 3 लोगों की थी। प्रोडक्शन उतना ही होगा, फील्ड में उतना ही काम है, 5 लोग मिलके ज्यादा काम कर देंगे या हर एक इंसान जो अपने पोटेंशियल से कम काम कर लेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा, जो मनी जनरेशन होगा, वो उतनी ही अमाउंट का होगा जितना अदरवाइज भी होना था। So that is what disguised unemployment is. So here comes the next question. A family involved in farming is said to be in full employment. Is this true or is this false? तो एक फैमिली है जो इन्वॉल्व है फार्मिंग में, उसे क्या हम फुल्ली एम्प्लॉयड कहेंगे? देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा डाइसी है, ठीक है। अब एक फैमिली जो इन्वॉल्व है, हो सकता है कि सारे मेंबर्स की जरूरत हो, लेकिन यहाँ पे हम फिर से ये बताना चाहेंगे कि अगर उस फैमिली में सारे मेंबर्स की जरूरत नहीं है तो वी कांट से दैट एवरीवन इज एम्प्लॉयड नेसेसरी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब रूरल एरियाज में फार्मिंग के अराउंड ही अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बिकॉज दैट्स द प्राइमरी जॉब दैट पीपल यूजुअली आर डूइंग। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है थोड़ी अलग होती है, अर्बन एरियाज में जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग होता है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find jobs. तो अर्बन एरियाज में एडुकेटेड पॉपुलेशन हमें ज्यादा मिलती है, पढ़े लिखे लोग हमें ज्यादा मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिफिकेशन है, शायद जॉब मिल भी रही हो लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर रही होती है। Unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. ठीक है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में, पीपल हु आर एक्चुअली प्रॉपरली एडुकेटेड, उनमें ज्यादा बढ़ गई है। Unemployment among technically qualified people on one hand while there is a dearth of technical skills and that is required for economic growth for otherwise. ये भी होता है कि जो हमने मान लो इस साल पढ़ाई की है, आज से 15 साल बाद वो इररेलेवेंट हो जाए तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करती है, बिकॉज जो आपकी स्किल सेट्स होते हैं वो अनसूटेबल हो जाते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। ओके, नाउ ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या होता है? Naturally feeling of hopelessness because you want to work, you're not finding work, you start struggling with money, you're not able to support your family, you become a liability, you start questioning your confidence, you start questioning yourself, आपको लगने लग जाता है कि आप लायक नहीं हो, so on and so forth। ऐसे बहुत सारे और भी challenges आते हैं। इकोनॉमिकली बात की जाए तो नेचुरली आपकी डिपेंडेंस, भैया आपका खर्चा कितने दिन तक कोई उठाएगा, या अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो पैसे कहाँ से आएंगे, आपको तो अपनी एक्सपेंसेस का ध्यान रखना ही है। तो द डिपेंडेंस ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इट जस्ट इंक्रीजेस। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात की जाए तो जनरल डिक्लाइन इज नोटिस्ड इन द हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, दैट हैज आल्सो बीन सीन बिकॉज पीपल स्टॉप फाइंडिंग इफेक्ट ऑफ बीइंग एडुकेटेड। अगर आप अनएम्प्लॉयड ही रहने वाले हो और जब फायदा ही नहीं है तो फिर आप क्यों करोगे एजुकेशन, क्यों टेक ओवर करोगे, राइट। सो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इकोनॉमी वी हैव टू अंडरस्टैंड। People who are an asset for the economy, they turn into liability. भैया एडुकेशन से हम कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटर होती है, और लेट्स जस्ट से कि हेल्थ केयर जो है और हेल्थ सर्विसेज जो है इन सारे लोगों की बेहतर है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बेटर होगी? नहीं होगी। क्वालिटी होने के साथ, बेटर होने के बावजूद एक लाइबिलिटी बन जा रही है, तो क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता है। It leads to the wastage of human resources because of course जो इंसान को जॉब नहीं मिल रहा है, जिसे जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसका ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। Their earning keeps them on bare subsistence level. People with low income and productivity are counted as employed. आप समझ रहे हो, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। जो लोग अपने पोटेंशियल से 50,000 रुपए अर्न कर सकते थे, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, उन्होंने एक ऐसा जॉब ले लिया जिसमें 20,000 रुपए मिल रहे थे, उन्हें लगा कुछ तो बेटर है देन नथिंग। एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरा हो सकता है
10 लोगों को काम था लेकिन 15 लोग कर रहे हैं, तो अर्निंग जितनी सबकी फुल पोटेंशियल में होनी चाहिए थी नहीं हो रही है, ना ही वो अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी हमारा फिर क्या हो जाता है, ये भी हमारा दूसरा चैनल हो जाता है, तो चैलेंज हो जाता है। तो पीपल विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, एज एम्प्लॉयड। तो हम एम्प्लॉयड गिन तो रहे हैं, बट जो उनका पोटेंशियल है, जो उनके अर्निंग की कैपेसिटी है, वो फुलफिल नहीं हो रही है। People tend to engage in any activity irrespective of its earning potential, as I told you, right? कि 50,000 का potential है, मेरी qualification है, लेकिन क्योंकि मेरे पास option नहीं है, तो I'm ready to go ahead and do a job of even 20,000 because it's 20,000 is better than earning 0 rupees. So here comes the next question. India lacks technically advanced manpower. Why? High population density, unbalanced sex ratio, shortage of schools, और हाई रेट ऑफ लिटरेसी। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नौकरियां कम है, बैलेंस जो है सेक्स रेशियो में नहीं देखा जाता है, स्कूल्स की शॉर्टेजेस है, या इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल एडवांस्ड जो हमारा मैन पावर है, उसमें हम क्यों लैक कर रहे हैं? ओके गाइस, सो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से देखो प्रॉब्लम हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, दैट्स ट्रू। लेकिन हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एडवांस्ड मैन पावर, यानी कि टेक्निकल नॉलेज क्यों नहीं है? सेक्स रेशियो, शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, इट वुड बी हाई रेट ऑफ इलिटरेसी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so the employment scenario in 3 sectors, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की बात करें, मैंने शुरू में भी आपको बताया था फार्मिंग सेक्टर में आज भी हमारे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बर्डन ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है वो वहां पे काम कर रहे हैं। So in recent years, there has been a decline in the dependence of the population on agriculture, partly because of disguised unemployment, this, as we have discussed earlier. Secondary sector is small scale manufacturing, which is the most labor absorbing. ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा है। टर्शरी सेक्टर की बात की जाए तो वेरियस न्यू सर्विसेज जो है धीरे धीरे अपीयर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज हेल्पिंग पीपल फाइंड न्यू जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इट्स हेल्पिंग जनरेटिंग आपका एम्प्लॉयमेंट। ओके, so with that we have actually finished the chapter, so let's quickly summarize. हमने पढ़ा that people who are part of workforce are called human resource. Economic activities are categorized under 3 sections: primary, secondary, and tertiary. Economic activities can be divided in market and non-market activities. It's been observed that women get less wages in comparison to women. That has been, in comparison to men, not women. Okay? That has been a challenge. The quality of population can be improved by providing education, training, and healthcare. The government of India is taking multiple initiatives to improve the education system in India for a better productivity of people. The health of a person is very important for a better quality of work, because education हो भी अगर health support नहीं कर रही है तो लोग अपने full potential पे काम नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये वो सिनेरियो है जहां लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स इवन इफ दे आर विलिंग टू. In case of India, we have unemployment both in rural and urban areas. In the case of rural areas, we see seasonal and disguised unemployment. Urban areas में हम ज़्यादातर देखते हैं educated unemployment. Unemployment has a detrimental impact on the overall growth of economy and individuals. Unemployment affects all 3 sectors of economy: primary, secondary, and tertiary. Okay, now we have live sessions going on for you guys already, as you know. अभी मैराथन सेशंस भी होंगे, और भी सारे कई सारे सेशंस हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी सेशंस चल रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर इम्बाइब लाइव क्लासेस, also especially because of the fact that it's not going to be free anymore, you guys. So get prepared, pump up yourself. The learning is going to be amazing.
but of course not free anymore. And however, you know the advantage of Imbibe app, just explore it so that as long as it's free, you have an understanding whether would you want to spend on it or not. Because trust me, it's going to be totally worth it. And most importantly, make sure to access the practice and test as of now, especially right before the examination. Imbibe के app पे जाओ, log in करो, and go ahead and check out all the sessions that's happening for you. Last few days of free access is left, so make sure that you're not missing out on that, right? And we have the virtual lab experience, we have the Imbibe Lens, we have the app readily available with everything. Doubt resolution can also be done. App में यहाँ पे आपको second ये देखो ask the doubt का ऑप्शन आता है जब भी यहाँ पे आप वेबसाइट खोलते हो. तो मोमेंट यू क्लिक ऑन इट, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस व्हाट्सएप चैट विच विल पॉप अप. यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बड़े आराम से क्लैरिफाई करा सकते हो. सो वट एवर क्वेरीज यू हैव स्पेशली राइट बिफोर द एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट मेथड टू गेट ऑल ऑफ दैट क्लैरिफाइड. And this is our Telegram channel. This is the one-stop shop for you. All the sessions that's happening, all the updates that's happening, यहीं पे हम आपके साथ contact करते हैं. तो ये link है और ये QR code है. Please make sure that you do not miss out on this and you are a part of it, because आपके तो भी 10th में बचा. It's not like you're giving 10th examination, you couldn't be a part of the 9th and 10th. And despite of Imbibe not being free anymore, you'll still have access to a lot of things, and YouTube channel तो है हमारा. So make sure you're staying tuned, you are subscribed to the channel. If you enjoyed the session, do not forget to hit the like button and share the video with your friends. And do tell me in the comment section if you need anything else, maybe beginning of the academic year, end of the academic year, exams के perspective से जिस भी angle से आपको जो भी चाहिए, do let me know. I'll ensure that I bring it up for you. So on that note, I'm going to end this session. Thank you so much everyone for being here. I'll see you guys soon. Till the next time, stay tuned, stay subscribed, and keep imbibing.